अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे शो में इलेक्शन हारने के बाद, बल्कि इलेक्शन हारने के फ़ौरन बाद ही तशरीफ़ लाए हैं मौजूदा बल्कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਯਾਰ। प्रोड्यूसर साहब, ये कुछ देर के लिए जरा सैड म्यूजिक लगा दें। ਯਾ ਬਈ ਸੈਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣਾ? ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸ਼ਬਨਮ ਆਈ ਆ ਪੁੱਤ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਇਆ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਵਕੀਲ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦੇ, ਕੋ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਰੱਟਾ ਪਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ। ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਡਨ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੱਬਰ ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਪਿੰਨੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇ। अगर तो करना है आपने केस, तो आपके अपने एडवाइजर है अमेरिका में ही साजिद तारड़ साहब, उनके कजन है यहाँ पे आजम नजीर तारड़, वो यार इनके भी वकील हैं, उनको वकील कर लें, एहसन बोन साहब को कर लें। ਪੁੱਤ ਇਹ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਬੰਦੇ, ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖੀ 'ਚ ਹੂਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। और अगर आपने तहरीक चलानी है तो मैं आपको तारुल कादरी साहब का फोन नंबर दे देता हूँ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਤੇ ਉੱਪੜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪੜਨਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੰਟਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਣੀ ਆ ਬੜੀ ਡਾਢੀ। अच्छा, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੁਖਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬੰਦਾ ਦੁਖਦਾ ਜੀ। रो रो ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੇ ਜਮਾਲੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੇ ਜਮਾਲੋ, रो रो। अच्छा, बाराक ओबामा का जो बाइडन की फतह में बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने सारा दिन लोगों को फोन किए हैं। अब अमेरिकन जो पब्लिक थी, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਬਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। अमेरिकन पब्लिक को जब ये पता चलता था कि जनाब इनको उनके महबूब साबिक सदर का फोन है, वो खुशी से पागल हो जाते थे। हाँ जी, उनके हाथ से फोन गिर जाता था, मैं फिर कहता था फोन उठाओ, बड़े खुश होते थे। ਐਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਨਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਤਾਜ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਤਾਜ ਜੇ ਆਉਣੇ ਆ। यस, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਅ 'ਚ ਬੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਿਆਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। लेकिन सर आप घबराए ना, हम केस करेंगे सर, फाइलें हमारे पास। ਪੁੱਤ ਕੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਗੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪੂ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਰੋੜਨਾ ਬੜਾ ਡਾਢਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੇਣੇ 5 ਸਾਲ। ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਐਡੇ ਸ਼ੋਖੇ ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟਰੰਕ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਪੁੱਤ। और भाई ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ 2 ਬਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢਣ ਡਏ ਆ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਬਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੇ ਡੱਬੂਲੀ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਜਾਏ ਜਰਾਏ ਉੱਥੇ ਚਵਲਾ ਜਿਹੀਆਂ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਣ ਡਈ ਆ। आपके हारने की वजह से? ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਮਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮਾਰ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਾਰਨ ਤੇ ਹੀ ਰੋਣਾ ਉਹਨੇ। पहले ही मुश्किल से आपके साथ गुजारा कर रही थी, शायद इसी वजह से कि आप सदर थे। अब क्या बनेगा? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਂਦੀ ਆ ਟਰੰਪੂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤੂੰ ਸਦਰ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। मिस्टर ट्रंप, आपको पता है आपके हारने पे सबसे ज्यादा दुखी कौन है दुनिया में? तेरी भरजाई नहीं,
जुनैद सलीम, उसके शो का एक इतना खूबसूरत कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਆ ਬੇਹਾ ਚਵਲ ਜੀ ਹਾਰੀ ਆ ਕਦੋਂ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਧਣਾ ਨਾ। वो तो लोगों के दिलों पे हुकूमत करता था। ਉਹ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਥੇ ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਅੱਜ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਰਵੀ। देखें मिस्टर ट्रम्प, वक्त बड़ी जालिम चीज है, ये बड़ों बड़ों को भुला देता है। ਇਹ ਸਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਬਰ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆਈ ਐਮ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਣ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ। मिस्टर ट्रम्प, कुटने का आप फिक्र ना करें, यहाँ पे आपको बड़े वकील ऐसे मिल जाएंगे जो ये फरीजा आसान अंदाज में पूरा करेंगे। ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਕਟਾਣ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਸਨ ਬੂਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾ ਤਾਰੜ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਪਿਆ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਓਏ ਤੋਏ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਲੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। पहले कौन सा आपके लिए चाशनी से मिठाइयाँ लेके आती थी, पहले भी आपको गालियां देती थी। ਓਏ ਆਹੋ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਨਾ ਖਬਰ, ਟਰੰਪੂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰਾਤ ਸਾਲੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਭੈਣ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਇਹੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਮੱਛੀਆਂ ਕੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਹਾਰੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੋ ਗਏ। अच्छा, आज आपके गार्ड्स के हाथ में कोई वेपन शेपन नजर नहीं आ रहा है। ਪੁੱਤ ਜਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣੀ, ਅੱਛਾ। ਜਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਆ ਹੁਆ? ਹਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਿਜਤੀ ਹੂ। हुआ क्या है? ਆ ਗੰਨਾ ਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਆ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਡਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਲਈਆਂ। ਤਰਲੇ ਲਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਰੰਪੂ ਹਾਂ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਟਰੰਪੂ ਦੇ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੀਆਂ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਵੀਦ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ 4 ਕੁ ਸਫੇ ਪਿੱਛੇ ਥੁੱਲ ਕੇ ਵੇਖ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਨੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤੀ 'ਚ। ਚਿੰਗਮ ਚੱਬਣ ਡਿਆ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੀ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। तो फिर आप ये हकीकत तस्लीम कर लें मिस्टर ट्रम्प। देखें, अब ये छोड़ें धांधली के इल्जाम, केस वेस, सीधी बात है इस तरह बाकी ग्रेसफुल तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो हैं, उन्होंने ये देखे ना सामने आपके बैठे हुए हाँ। कितने ग्रेसफुल है, किताबें लिखें, मुख्तलिफ एनजीओज में काम करते हैं, मुख्तलिफ फाउंडेशंस बनाते ਉਹ हैं। 2 ਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਗਿਆ। आपको नहीं, अवाम ने वोट दिया, मैं क्या करूं? ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ? ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿਓ ਟਰੰਪੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਲਾ ਖੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਲਾ ਖੋੜ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬੌਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਢਾਰਾ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣਾ? ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਤਨ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। मिस्टर ट्रम्प, देखिए 4 सालों में आप एक लम्हे के लिए भी सीरियस नजर नहीं आए। यही आपके साथ अलमिया रहा है, आप हर जगह कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਰਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੋ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਟਰੰਪ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਫਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰਹੋ, ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਆ। ਬਾ ਆਪਣੇ ਮਰਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਪੋ ਫਿਰ ਬੇਵਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਪੋ ਕੋਈ ਰਹੋ ਹੁਣ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ।
ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ, ਜਿੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ। ਜੁਨੈਦ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਐਕਸਪਰਟ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਕੋ ਰੱਟਾ ਪਵਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਾਜੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਦਮ हुसैन रिजवी साहब ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। अच्छा, आपके कहने पे, आपकी कॉल पे अमेरिकी अवाम सड़कों पे निकल आएगी? ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇਰੀ लेकिन अगर ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ये कॉल बाराक ओबामा जैसा बंदा देता तो हजारों क्या लाखों लोग सड़कों पे आ जाते। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੁੱਤ ਜਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जावेद हाशमी साहब का क्या ताल्लुक है ਉਹ आपके? ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੇ ਰੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। वो क्या कहेंगे? ਬਸ ਜਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ ਇੱਕ ਕਿਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ CIA ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਲਾ ਫੋਨ ਜਰਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਰਾ ਮਿਲਾ ਫੋਨ। ਉਹ ਚੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਭੇਜੋ ਖਾਲੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। जुनेद साहब आज मुझे जरा जल्दी छुट्टी दे दें, खैर है, मैंने देखें पकानी है। ये मसाले लिखवाए हम पहले सारे। ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਕਾਉਂਦਾ ਪਕੂੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਗਾਂ ਧੋਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਕਾਉਣੀ ਦੇਗ? ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੇਵੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਏ ਜਮਾਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣਾ। ਚਵਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਟੁੱਕਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। सर असि हारे हैं। बाराक ओबामा कौन नाचता है? 44 ਨਾਨ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਖਾਦੇ ਐ, 44 ਤੇ 16 ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। अच्छा मिस्टर ट्रम्प, प्लीज छोड़े सारी बातें, ये बताएं कि मुस्तकबिल के इरादे क्या है आपके? ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਯੂਸ ਨਾ ਕਰ ਪਈ। देखिए अब ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਠੋਡੀ ਨੂੰ। देखिए, मैं भी आपको अपना छोटा भाई समझता हूँ। देखिए मेरी बात। ਪੁੱਤ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਛੋੜੋ ਸਾਰੀ मेहरबानी नहीं ਬਾतें। है, मेरा झूठ है ये। अब तशरीफ ਨਹੀਂ रखिए। ਪੁੱਤ ये बताएं। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, लेकिन छोड़नी पड़ेंगी ये ਪੁੱਤ ਮੈਂ बातें। ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। किसका जी करता है व्हाइट हाउस छोड़ने को, लेकिन छोड़ना पड़ता है। ਪੁੱਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। देखें, अमेरिका का आइन आपको इजाजत। ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਆਪ ਆਇਨ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਇਨ ਆ ਗਿਆ ये ਵਿੱਚ। देखें, आपके इसी रवैये की वजह से आज आपको ये दिन देखना पड़ा है कि आपने आइन और दस्तूर को लिफ्ट ही नहीं करवाई। ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾਓ। ਬੌਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਲਾਂਟੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। ਨਾ ਭਗਵਾਨਾ ਲੈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ। हम सिर्फ 50,000 एकड़ पे शकरकंदी काश्त कर लेना जी। तो हम बाआसानी 30-40 करोड़ डॉलर कमा सकते हैं। अच्छा गोगा जी, सर्दियां आ गई हैं जी। और जाहिर है कि सर्दियों की जो सौगातें हैं उसमें एक ऐसी सौगात भी है जो जिसको हमें खाना चाहिए लेकिन हम बहुत कम खाते हैं। बहुत कम हमारी तवज्जो हासिल करती है, हम सिर्फ चस्के के लिए उसको खाते हैं। अच्छा जी। यानी अपना जो चटखारे के लिए खाते हैं, और वो है शकरकंदी। बिल्कुल सही। शकरकंदी शकरकंदी एक ऐसी चीज है, लाजवाब चीज है कि हमें इसके फवायद का पता चल जाए तो हम कोई दूसरी चीज खाए ही ना। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है जी। क्या क्या फवायद हैं इसके? बेटा सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप कागज पे रख के भी खा सकते हैं। और तीली के साथ भी खा सकते हैं जी, तीली के साथ भी खा सकते हैं, और इसके बगैर खट्टे के भी खा सकते हैं, और खट्टा डाल के भी खा सकते हैं। कह कौन रहा है कि तीली के साथ खा सकते हैं, जिसने हमेशा ऐसे खाई है।
चाहे बाबूजी इसको तीली के साथ खा लें, चाहे इसको सूखी खा लें, चाहे चम्मच के साथ खा लें, इसके बड़े फायदे हैं। जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं मोटे मोटे ये फायदे। मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज है, जिल्द के लिए, बालों के लिए, हाजमे के लिए बड़ी अच्छी चीज है। वाह वाह, और नहीं, असाबी- बालों का तो आपका रिजल्ट नजर आ रहा है। यार मैंने नहीं खाई तो मैंने विग लगाई हुई है ना। नहीं तो जब बाल उतरना शुरू हुए थे तो खा लेनी थी, ये कौन सी सुनियारे से मिलती है, लेकिन सस्ती सी आइटम है। उस वक्त फिर शुगर हो गई, शुगर की वजह से नहीं खाई। अगर शुगर ना हो तो शकरकंदी खाई जाए तो ये इंसुलिन का लेवल जो है ये अच्छा रखता ये है। बड़ी जबरदस्त बात बताइए, यकीन है पूरा यार। डॉक्टर समर साहब आप नहीं नहीं नहीं, वाकई ये बड़ी जबरदस्त बात है कि अगर आपको शुगर नहीं है हाँ जी। और आप शकरकंदी खाते हैं तो शकरकंदी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये इंसुलिन लेवल जो है उसको मेंटेन अरे वाह, असल में इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है। ये मेंटेन तुम्हारे मुंह से निकल गया, उसके मुंह से नहीं निकला। उसने बात तो समझा दी है ना। नहीं उनके मुंह से निकल। अब मेंटेन कहने के लिए मेंटेन कर रहा था मुंह को। मैंने लेबल कह दिए, मैंने लेबल कह दिए। लेबल असल बात ये है कि शकरकंदी जो है ये विटामिन ए का स्टोरेज है। अरे वाह, इसके अंदर बेपना विटामिन ए होती है और विटामिन ए जो है उसके फायदे बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। कि आपको जो सूरज में जो ज़रर रिसां शुआएं हैं उनसे आपकी स्किन को बचाती है, कैंसर के खिलाफ मदाफियत पैदा करता है विटामिन ए। विटामिन ए के तो बेशुमार फायदे और उसमें विटामिन ए जो है वो भरपूर तरीके से शकरकंदी में मौजूद होती है। असल में शकरकंदी को हमने ना कभी भी लिफ्ट नहीं करवाई, हमने इसको सिर्फ बस चटखारे के तौर पे खाया। और अगर जरा देखा जाए कि हम कितनी खाते हैं तो एक अमरीकी शहरी जो है वो औसतन 4-5 किलो जो है सालाना शकरकंदी खाता है। हम कितनी खाते जी। हैं? हार्डली 100 ग्राम सालाना। 100 ग्राम, 100-125 ग्राम, वो भी आधा अगर जो पाव। कोई छोटे मोहल्ले में रहता है, हाँ बिल्कुल, गली में को बेचने वाला आए तो खा ली जरा। एग्जैक्टली, रेडी से लेके खा लेते हैं, लेकिन बाकायदा ये तमाम करके हम शकरकंदी नहीं अब खाते। कच्ची शकरकंदी हर स्टोर से मिलती है, बड़ी बड़ी हाँ जी, दुकानों से, हर जगह से मिलती है। सब्जी अगर वाली आप दुकान उसको सब्जी वाली दुकान से भी मिलती है, इसको आप ला के घर में ही उसको उबाल के तो खा सकते हैं। और बेहतरीन। तुम यकीन करो कि इतनी लाजवाब चीज़ है, हमें तो कोई मतलब एज ए नेशन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है ना। हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो न्यूट्रिशन की बातें हैं, ये हमें कोई समझाने वाला कभी कोई आया ही नहीं है। वरना तुम देखो कि दुनिया में इस वक्त 50 अरब डॉलर की शकरकंदी की ट्रेड हो रही है। 50 अरब डॉलर की। बल्ले बल्ले बल्ले। कमोबेश पूरी दुनिया में जो है ना वो चीनी जो है वो छाए हुए हैं। अच्छा, चीन इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। 7 करोड़ टन शकरकंदी पैदा कर रहा है चीन। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन है और वो कितनी शकरकंदी पैदा कर रहा है? अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है मलावी, आपने सुना होगा गौरी साहब। वो मलावी में रहते हैं मेरे ताया जी। अच्छा। वो पहले युगांडा में रहते थे। अफ्रीका से उनको निकलने नहीं देते। नहीं यार है, और किधरों नजर आईडी कार्ड ही नहीं ना बनना उनके, और कहीं से आईडी कार्ड बनवाए ना तो आईडी कार्ड फोटो नहीं एक्सेप्ट करता। एरर आ जाता है। हाँ जी। अच्छा, नंबर 1 चाइना है विद 7 करोड़ टन और दूसरे नंबर पे मलावी है सिर्फ 55 लाख टन। 55 लाख टन से दूसरे नंबर पे मलावी आता है। इतना बड़ा फर्क है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में शकरकंदी जो है वो ये चीनी खिला रहे हैं सारों को। बहुत अच्छी। नहीं वैसे तो उनका मुल्क भी बहुत बड़ा है और हाँ उनके जी। पास जो अफरादी कुव्वत है बहुत ज्यादा है उनकी। वैसे भी वो जिस तरफ ध्यान करते हैं ना चाइना वाले, चाइना। वो अखीर कर देते उनको हैं। नजर आ जाए सही चीनियों को कि ये चीज हम पैदा कर सकते हैं और हमें इससे आमदन हो सकती है, वो उस पूरे खित्ते को उस काम पे लगा देते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 1982 से लेकर आज तक वहीं पे 10-12 हजार टन पे अटके हुए हैं। इसलिए कि यहाँ पे कोई ना तवज्जो दिलाता हाँ है। जी। यहाँ पे एक को एक के बेचारा जुनैद सलीम वो कलब के फिर अखीर के अंदर चलो गमले हैं जी ला लो। गमले च किन्नी को लग दी? आधा किलो लग दी ज्यादा। अब यकीन करो कि इस पे भी कल्पने को जी चाह रहा है कि अगर हम 50,000 एकड़ पे शकरकंदी लगा लेना, जी। 50,000 एकड़ पे, और इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अक्सर मौजूआत पे बात करते हुए जो मुख्तलिफ हम
ہم اجناس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی اگر ہم فی ایکڑ پیداوار نہ بھی بڑھائیں نا, ہم ویسے ہی جتنی ہم اس وقت حاصل کر رہے ہیں وہ کم و بیش دنیا میں جتنی حاصل کرتے ہیں اس کے برابر ہی ہے. ہم صرف 50,000 ایکڑ پہ شکرقندی کاشت کر لینا تو ہم بآسانی 30-40 کروڑ ڈالر کما سکتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد, بلکہ اپنی ضروریات دگنی بھی کر لینا, پھر بھی ہم جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ 2 لاکھ ٹن جو ہے وہ شکرقندی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سر ویسے یہ 1 ایکڑ میں کتنی کاشت ہو جاتی ہے؟ 8 ٹن. 8 ٹن یعنی آلو سے زیادہ یہ پیدا ہوتی ہے, اس کی پیداوار 1 ایکڑ میں آلو سے زیادہ ہے. کیا ہمارے ہاں یہ مشہور ہے نا جی کہ جو شیخ برادری ہے ہماری یا میمن جو ہیں کراچی والے, وہ بہت سخت کاروباری ہوتے ہیں, مگر جب میں چائنا والوں کی باتیں سنتا ہوں نا تو میں کہنا یار صحیح شیخ تھے پھر وہ نہیں. اس قدر وہ ذہین لوگ ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے کس قدر وہ جھپ جاتے ہیں. یہاں پہ جو ہمارے شیخ صاحبان بھی ہیں جو سب سے زیادہ کاروباری گنے جاتے ہیں, وہ کنے کو کاروباری ہیں, چھوٹی چھوٹی جگہ تھی پھنسے ہوندے ہیں. ہمارے گجرانوالا میں شیخ تارک جموں والا بہت بڑا امیر آدمی ہے, اور بزنس کیا ہے, ایک کری چوہا تھوڑی جی روٹی ٹوک کے چلا گیا, لو جی وہ پیچھے پی گیا, میں چھڈنا ہی نہیں, انہوں پھڑے اس پھڑ کے انہوں کہندا کہ جنی دیر تک اس روٹی دے پیسے نہیں نہ پورے ہون گے ایتھے میرے سامنے مینوں نچ کے وہا. کنی دیر بیچارہ چوہا انجن کردا, آخر میں چوہا کہتا ہے کہ نوٹ بھی تو شیخ صاحب سکتا ہو. شیخ صاحب نے جواب میں ایسے تھوڑا سا کرتا ہے. شیخ صاحب نے جو نے کہا نا تارک صاحب بھائی جی کو ویل شیل بھی دیو, کہندے تو نچ لینا تے ویل دی تھان تے پھر میں تینوں نچ کے بہا دیا. اچھا سر, یہ اتنی میٹھی ہوتی ہے اور اتنی اچھی ہوتی ہے تو اس کو شکرقندی کیوں کہتے ہیں؟ گندی نہیں, اس کو شکرقندی کہتے ہیں. کندی. اچھا شکرقندی, وہ جو مصرع نہیں ہے زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. قند کہتے ہیں میٹھی چیز کو, مٹھائی کو, مربے کو, گل قند جیسے ہے. تو شکرقندی, قندی یہ گندی جنی نہیں ہوں ہے. کھا دیو نا گندی گندی اون بھول جا تے اگوں تو کندی کھانی ہوں. ٹھیک ہے, شکرقندی. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ نے فزکس کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے؟ انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی, لیکن پڑھنے والوں نے ان کو بایولوجی میں پڑھا ہوا ہے. ویسے لگتے ویسے ہی ہیں جو وہ ٹسمیٹ ڈائیگرام نہیں تھے بناتے. ناظرین, آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹریفک وارڈن اسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب, بڑی مہربانی ہے آپ کی, آپ دوبارہ ادھر آ کے بولنے کا موقع دیتے ہیں. آج میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے آیا. اچھا جی, آپ کا بھی چونکہ سب سے بڑا جو دڑینا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی ٹریفک ٹھیک ہونی چاہیے. تو آپ کو پتا ہے کہ وارڈن جو ہیں سارے پاکستان میں, بلکہ جتنے بھی ٹریفک کی پولیس ہے ان کا بھی یہی مطمع نظر ہے کہ ٹریفک ٹھیک ہو. کیا ہے ان کا مطمع نظر؟ مطمع نظر یار پلیز. یہ مطمع نظر میں تے ہوتا ہے یا توئے ہوتا ہے؟ جنید صاحب مجھ سے آپ یہ پوچھے کہ ہری اور لال بٹی کے درمیان میں کون سی بٹی ہوتی ہے. مجھے آپ مطمع نظر پہ اڑ گئے ہیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے جو اہم بات ہوتی ہے جس پہ میں زور دیتا ہوں ہر دفعہ آ کے آپ کے پروگرام میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس بات کو اٹھائیں. جی جی, تو وہ یہ ہے کہ خدا کے واسطے جو ٹریفک لائسنس ہوتا ہے, ڈرائیونگ لائسنس جسے کہتے ہیں, وہ کم از کم اگر ٹھیک بننے شروع ہو جائیں اور ہر بندہ بنوائے, بجائے پیسے دے کے یا بجائے سفارش کرا کے افسروں کی, تو ٹریفک کا ڈرائیونگ لائسنس بنوا کے تو آپ روڈ پہ چڑھ جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا رسک ہے. سنا تو ہے کہ ٹریفک پولیس سے یہ جو سفارشی کلچر ہے خاص طور پہ ڈرائیونگ لائسنس کے اصول میں اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے, آن لائن شروع کیا جا رہا ہے یہ سارا جی جنید صاحب یہی بتانے کے لیے آپ کو اگر پتہ ہے تو پھر میں چلا جاتا ہوں. بتائیں نا, میں نے تو سنا ہے, اخبار میں پڑھا تھا. پکا لائسنس پکا بننا چاہیے لوہے کا. لوہے کا لائسنس یار کو لائسنس وہا کے تے ڈوارڈن کو لو چھٹنا ہے تو سی یا لائسنس وہا کے کلفی لینی ہے.
टोकन वाली कुल्फी होती है, टोकन लो इधर देख के कुल्फी ले हद हो गई है आपकी भी। अब मेरा ख्याल है यकीनन मुझे अब तो 100% यकीन हो गया कि आप बेवकूफ आदमी। नहीं हम दानिश्वर इधर देख रहे हैं, हम बात लाइसेंस की कर बात कर रहे थे असलम भाई। बात मैं ये करना चाह रहा हूँ जुनैद साहब, बाढ़ के ममालक के अंदर वो जो पूरी दुनिया जो तरक्की याफ्ता ममालक हैं, जिनको आप देखते हैं कि ये बड़ी अच्छी कौम में है, वो सारे के सारे जो है ना वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। एक दफा समझ आ जाता है, फिर 3 दफा क्यों कहते हो? ये भी दानिश्वर है। हद हो गई, आपको ये भी नहीं पता कि जिस चीज पे जोर देना उसको बार बार रिपीट करते हैं। मैं इसकी ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत को वाजे करना चाह रहा हूं। 3 दफा गए सी लाइसेंस बनवाना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਰੇਸਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ तक नहीं ਜਾਂਦੀਆਂ। बेटे बात ये हो रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस जब बनाने के लिए जाएं तो आपको कम से कम ट्रैफिक के कवानीन का पता होना चाहिए, आपको ट्रैफिक सिग्नल का पता होना चाहिए, जो इशारे हैं ट्रैफिक के उनका पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि बाढ़ के ममालिक में इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उधर लोग बेचारे MBBS में पास हो जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस में नहीं पास होते। 2-2, 3-3, 4-4 चक्कर लगा के तो फिर लाइसेंस बनता है। इधर आप फोन कराते हैं, चौधरी बशीर साहब का फोन आ गया जी, वो कौन है जी, MP है, बना दो जी लाइसेंस। और जी असगर डोगर साहब का फोन आ गया, ये कौन है जी, SP साहब है, बना दो जी लाइसेंस। यार हद हो गई है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ये तमाशा लगा हुआ है। हमारे यहाँ सिफारिश करने के बाद फिर ये नहीं पूछती पुलिस कि किसका लाइसेंस बनवाना है, ये पूछती जी कितने लाइसेंस बनवाने हैं। देखो ना जरा, देखो इट इज वेरी बैड। मैं कहता हूं कि अगर आप सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसीजर शफाफ साफ कर दें तो आपकी ट्रैफिक ठीक हो सकती है। कम से कम सेंस तो होगी ना जो ड्राइव कर रहा होगा, उसको ये तो पता होगा कि क्या सिग्नल है, क्या इशारे लगे हुए हैं, ट्रैफिक के कवानीन को तो वो समझता होगा। तो न सब अब हमारे महकमे ने, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो ऑनलाइन इम्तिहान देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए फिर ऑनलाइन सबको पता होगा कि मैंने देखो बात ये है कि अगर आप सारे असूलों को पढ़ के तो फिर लाइसेंस लेंगे तो उसका आपको फायदा है। बिल्कुल सही। तो अगर आप वैसे लाइसेंस ले लेंगे तो फिर यही बात है, भावे लोहेडा लाइसेंस ले लो, भावे ड्राइविंग लाइसेंस ले लो। तो असलम साहब ऑनलाइन जो लाइसेंस बनेगा उस पर बातचीत ही होगी ना, वो या चला के भी दिखाएंगे? वो उसके बाद होगा। अच्छा, उसके पहले होता है, देखो पहले होता है रिटर्न टेस्ट, अच्छा। आई मीन थ्योरी टेस्ट होता है। थ्योरी के हवाले से आप पहले टेस्ट दें, आप जब आप थ्योरी पास कर लेंगे फिर प्रैक्टिकल पे आए। फिर प्रैक्टिकल आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हुई है? इन्होंने नहीं पढ़ी हुई, लेकिन पढ़ने वालों ने इनको बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है। वैसे लगते वैसे ही हैं जो वो तस्वीर डायग्राम नहीं बनाते। तो बात ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास एक्यूरेट होना चाहिए और बगैर सिफारिश के होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि क्या कवानीन है, ट्रैफिक इशारे क्या सब। इतनी हंसी आती है। हम चूंकि ड्यूटी पे होते हैं इसलिए हंसते नहीं है, फिर मुंह पे हाथ ला के ये कर लेते हैं। हंसी इतनी आती है। एक बंदे को मैंने पूछा, मैंने कहा यार इधर तो दाएं तरफ मुड़ना मना था, तो तुम क्यों दाएं तरफ मुड़ के आ गए हो? कहते किधर मना है? मैंने कहा वो देखो बोर्ड लगा हुआ है, इधर को तीर करके ऊपर ऐसे क्रॉस किया हुआ है। कहता मुझे क्या पता, इसका मतलब भी है दाएं तरफ न मुड़ो। मैंने कहा तुमको पता नहीं है तो तुम्हारा लाइसेंस किधर है? कहता ये लो लाइसेंस उसके पास है, तो उसको यही नहीं पता कि दाएं तरफ मुड़ने वाला इशारा क्या होता है या ना मुड़ने वाला क्या होता है। फिर इसी तरह अगर आप किसी से पूछे कि भाई जी ये जो सड़क बत्ती है ट्रैफिक इशारा और ग्रीन बत्ती, इसके दरमियान जो येलो बत्ती है ये क्या होती है, इसका क्या मकसद है? कहता है ये ट्रैफिक का झंडा पूरा करने के लिए बनाई है। मैंने कहा यार तेरी माथे से नहीं बाज गई, ये इशारा ट्रैफिक का है, ये झंडा कहां से आ गया? कहता झंडा ही होता है जिसमें इतने रंग होते हैं। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, हमारा ये भी साथ साथ फर्ज बनता है हंसने खेलने के। जो हमारे कौमी हीरो हैं, हाँ जी, उनकी अगर चमक कहीं हमारे जहनों में मांद पड़ने लगे
तो उसको जरा दोबारा एक दफा चमका चमकाया। खूबसूरत बात। अच्छा भाईजान, हीरोज ऑफ पाकिस्तान की बात चली है, तो एक ऐसा पाकिस्तानी हीरो जिसको हम फख्र के साथ फख्र पाकिस्तान कहते हैं, पूरी दुनिया में हम बड़ा सीना फुला के उनको क्रिकेट की दुनिया में फख्र पाकिस्तान कहते हैं, मोहतरम जनाब अलीम डार साहब, जिन्होंने मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को बिल्कुल कोई खेत की मूली समझा हुआ है, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। तो इससे पहले उनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि उन्होंने हर तरह के फॉर्मेट्स की क्रिकेट में आज तक 388 मैच सुपरवाइज करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। क्या फिर बात। 132 टेस्ट मैचेस खिला के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। वाह। अब उनका जो ताजा तरीन शिकार है वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से, वो 210 उन्होंने वनडे इंटरनेशनल सुपरवाइज करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, जिसके लिए सिर्फ अलीम डार साहब ही नहीं, मेरा ख्याल पाकिस्तान एज ए कंट्री भी मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अच्छा जी, पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हीरो, हॉकी की दुनिया का चैंपियन, क्या बात है, रशीद जूनियर साहब फौत हुए हैं। और अखबारों में तो आया है, मगर उनको जिस तरह उनकी रुखसती होनी चाहिए थी हाँ जी। वैसे हमने की नहीं की। बहुत बड़ा आदमी हुआ है हॉकी की गेम में, मुझे याद है अच्छी तरह, उनको किंग है, गोल करके आए। फिर उसको कोई नहीं मना कर सकता। वाह जी। बहुत बड़ा आदमी हुआ है और उसने पाकिस्तान को बहुत इज्जत दिलाई है। बेशक। 1968 68 जैसे हम कहते हैं 68 में हाँ जी। अपने कैरियर का आगाज किया, और पहले साल में ही मैक्सिको में होने वाले जो थे ना जी मैचेस, मैच। मुकाबला जो हाँ जी। वहां पे जो टूर्नामेंट हुआ, जी, जी। वहां से गोल्ड मेडल उठाया। वाह। जी 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 जी, ये मैक्सिको में ओलंपिक्स हो रहे थे उस वक्त, जी। जहां से गोल्ड मेडल ये लेके आए। अच्छा। इनका पूरा नाम अब्दुल रशीद था और रशीद जूनियर के नाम से ये जाने जाते थे। यानी इसे कहते हैं हकीकी हीरो के पहले साल ही गोल्ड मेडल उठाया। फिर उसके बाद इनका फतूहात का सिलसिला चल निकला। अच्छा। 1970 में बैंकॉक में होने वाली जो गेम्स थी, क्या उनको कहते हैं, एशियन गेम्स, हाँ, एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया, और उसकी वजह भी रशीद जूनियर साहब। वाह वाह वाह। और मजे की बात यह है कि फाइनल 71 में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता। वो जो वर्ल्ड चैंपियन हुई टीम, उसका भी रशीद जूनियर हिस्सा थे। अच्छा। यानी वो ये मुसलसल, ये जिसे ग्रैंड स्लैम कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स गेम्स। और ओलंपिक, ओलंपिक्स। यानी पाकिस्तान की हॉकी टीम ने ग्रैंड स्लैम मुकम्मल की। तीनों गोल्ड मेडल पाकिस्तान के पास आ गए। क्या बात। अच्छा, ये जो वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान ने, हाँ जी। इसमें सेमीफाइनल में इंडिया को हरा के तो पाकिस्तान फाइनल में फाइनल। पहुंचा। क्या बात है। वाह। अच्छा, 1972 के ओलंपिक्स में पाकिस्तान को फाइनल में 1-0 से शिकस्त हुई, मगर वो गोल मुतनाज़िया था। अच्छा। जी जी जी, पूरी दुनिया में डिस्कस हुआ था, लेकिन सिल्वर मेडल पाकिस्तान के हिस्से में आया। फिर 1974 में एशियन गेम्स में फिर एक दफा फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी और फिर चैंपियन बना एशियन गेम्स का। अच्छा। जी हाँ, इस टूर्नामेंट में रशीद जूनियर ने मजमूई तौर पर 13 गोल किए। ये रशीद जूनियर के बड़े भाई जो है ना जी, अब्दुल हमीद भी हॉकी के मायनाज प्लेयर थे। अच्छा। इन्हें ब्रिगेडियर हमीदी के नाम से ब्रिगेडियर हमीदी भी हॉकी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम था। अच्छा, रशीद जूनियर दुनिया के उन 3 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में सोने, चांदी और कांसी के तीनों तमगे जीते हुए हैं। क्या बात। फिर रशीद जूनियर ने 89 बैनुल-अक़वामी मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और 96 गोल किए हुए हैं। ये रशीद जूनियर साहब जो हैं, चूंकि पहले भी एक प्लेयर थे अब्दुल रशीद, पाकिस्तान की टीम में रहे हुए, जी, जी। इसलिए उनको रशीद जूनियर कहा जाता था। और ये फिर खिलाड़ी और फिर मैनेजर दोनों हैसियत में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। जब अच्छा। ये टीम के मैनेजर थे उस वक्त भी वर्ल्ड कप जीता था। फिर रशीद जूनियर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, अगली मंजिलें आसान फरमाए। आमीन आमीन। नाज़रीन, ये था आज का अस्पे हाल। और चलते चलते छोटी सी बात ये कि हलाल कमाई इंसान खाता है और हराम कमाई इंसान को खा जाती है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।